afternoon, everyone. I am Sanchita Sanjay Varkar. I am from 10th standard and currently studying in Icon classes Gokuldam branch. For today, I will be your teacher and teaching you a concept of human eye and working of its lens. This is very an interesting topic and it's very easy. But when I saw the diagram, it was quite complicated. But I will be using code mixing language, that is Hindi and English together, for you all to understand. But when I'm done with the topic, you have to first take out your textbook and read it out carefully, because after all you have to learn the answers from there itself. I will make it clear what I will be covering in the topic. First is the simple term eye, second is the detailed term of eye, third is the explanation or diagrammatic explanation of eye, refraction taking place in the eyes, how image is formed, that's all. So students, just for you all to understand, I will be switching another side of my camera, so that you can see the diagram, you can concentrate on the diagram itself. So students, now we are going to concentrate on the very important diagram, that is the human eye. तो ये जो diagram है, that is the internal structure of the eye. सबसे पहले basic knowledge. The human eye size is roughly or approximately 2.3 cm and in diameter and is almost spherical. Our eye consists of various parts like sclera, which is the white color part in our eye, cornea, aqueous humor, pupil, iris, lens, ciliary muscles, retina, vitreous humor, optic nerves such as cones and rods. At first हम लोग बाहर के साइड से अंदर के साइड तक डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वी आर लुकिंग एट कॉर्निया. ये जो बल्जी पोर्शन है ना, थोड़ी सी उभरी हुई, वी कॉल इट एज कॉर्निया. मतलब जो भी इनकमिंग लाइट रेज है सबसे पहले कॉर्निया पे टकराएंगी, उसके बाद अंदर इमेज रिफ्लेक्ट होके फॉर्म हो जाएगी, फोकस होके फॉर्म हो जाएगी. Then we'll look at aqueous humor. Aqueous humor is nothing but the fluid portion of the eye. This is 99.99% water and 0.1% कुछ nutrients है, like protein, carbohydrates and sugar, amino acids, etc. So students, इस aqueous humor में और इस aqueous fluid में low protein concentration होते हैं, and this fluid is secreted from the ciliary epithelium, which is nothing but a structure supporting the lens. And what is the function of the aqueous humor? It nourishes the cornea and the lens. सबसे main बात, even small variations in the production or outflow of the aqueous humor is very significant, because they're going to have a large influence on your intraocular pressure, which is nothing but the fluid pressure of the eye, and even it can lead to glaucoma, the major cause of vision loss. तो फ्रेंड्स, सबके पास आँखों में एक कॉमन स्पॉट रहता है, एक कॉमन होल रहता है, विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक. वो ब्लैक कलर का रहता है, विच इज़ कॉल्ड एज प्यूपिल. ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी लाइट रेज अंदर जाएंगी, ये हमेशा प्यूपिल के थ्रू ही अंदर जाती है, और अगर ये लाइट रेज हमारे आइरिस पर पड़ेंगी तो ये हमेशा एब्जॉर्ब होंगी या तो वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी. तो प्यूपिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ इन ब्लैक कलर. अब हम जाएंगे हमारे आँखों के कलर्ड पार्ट के पास, दैट इज़ कॉल्ड एज आइरिस. तो हम जब भी किसी की आँखों के कलर के बारे में बात करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आइरिस. तो आइरिस इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मेलानिन, दैट इज़ द पिगमेंट फाउंड इन आइज. अगर हमारे आँखों में मेलानिन कम हो तो हमारी आँखें ब्लू कलर की रहेंगी. अगर हमारे आँखों में थोड़ा पिगमेंट हो तो देन वी आर गोइंग टू गेट ग्रीन कलर आइज, और अगर बहुत सारा पिगमेंट हो तो ब्राउन कलर एंड देन ब्लैक कलर आइज. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेंस.
तो डे टू डे लाइफ में कई तरह के लेंस होते हैं, एग्जाम्पल कैमरा लेंस, टेलीस्कोप लेंस। तो व्हाट इज़ अ लेंस? अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड साइड्स फॉर concentrating or dispersing light rays. These lenses are of glass materials, but our eye has a convex shaped lens which is made up of a smooth transparent membrane. तो ये लेंस जो है ना, ये स्मूथ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना है। तो ये लेंस अपने शेप और साइज़ को एडजस्ट कर सकता है। इस वजह से ये स्मूथ और ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक रहता है। अगर ये ग्लास का रहता तो ये कभी भी फूट जाता और हमारे आँखों को डैमेज पहुंचा सकता था। ये लेंस का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट फोकसेस द इनकमिंग लाइट रेज ऑन द रेटिना टू फॉर्म द इमेज। तो इस वजह से ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ क्वाइट डिस्टेंट ओवर योर, तो ये अपने लेंस को बड़ा बना देता है, मतलब कर्वेचर थिन हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो तो ये लेंस अपने आप को छोटा बना देता है, मतलब राउंड और कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड कर्वेचर इज़ थिनर एंड इफ़ नियर बाय ऑब्जेक्ट कर्वेचर इज़ थिकर। नाउ विल टॉक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट which is the fiber-like material present over here. तो इसने ही हमारे लेंस को पकड़ रखा है, सपोर्ट दिया है। We call it this orange color part and this hair-like ciliated structure as ciliary muscles. ये हमारे लेंस को शेप दे सकती है, बदल सकती है। हमारी लेंस जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, तो अगर हम इसे पोल एरियाज़ पे दबाएंगे तो ये बाहर की साइड कर्व हो जाएगी। अगर हमें पोल एरिया से स्ट्रेच करेंगे तो ये लॉन्गेट हो जाएंगी। नाउ यू विल थिंक इसका क्या फ़ायदा है? तो हमारी आइज़ डिफरेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती है। तो हमारी आइज़ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती है और हमारी आइज़ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती है और उनके इमेज को सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बना सकती है। सो यू विल थिंक इसका क्या फ़ायदा? तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म करनी होती है। तो ऐसा करने के लिए हमारे लेंस की पावर को चेंज होना पड़ेगा एंड फॉर दिस आई कर्वेचर को चेंज होना पड़ेगा। ये करने के लिए हेल्प करती है सीलियरी मसल्स। तो आप सोचेंगे कैसे? आई विल टेल यू। नाउ आई विल गिव यू टू केसेस। फर्स्ट केस में यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फार साइटेड ऑब्जेक्ट्स like this, and now you have to concentrate on the far sighted objects. What conclusion will you draw? जब हम दूरी के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट रेज यूजुअली पैरेलल रहती है। सो इस केस में लाइट रेज हल्के से रिफ्रैक्ट होकर हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है। तो आप देखेंगे कि हमें दूरी के ऑब्जेक्ट पर देखने के लिए इतना कोई प्रेशर नहीं रहता आइज़ पर। हमारे आंखें बहुत रिलैक्स रहती है। तो ये जो आंखें रिलैक्स रहती है, मतलब ये लेंस भी बहुत रिलैक्स रहती है, कर्वेचर थिन हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। नाउ अगर तुम्हें कहा गया कि हम अपने बुक को या फिर किसी दूर पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को 1 या फिर 2 सेंटीमीटर की दूरी से पकड़ कर पढ़ो या फिर देखो, देन इट विल बी क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर यू। हम आपके आँखों को बहुत स्ट्रेस मिलेगा। यू विल नोटिस दैट जब ऑब्जेक्ट पास रहती है तब लाइट रेस पैरेलल होने के सिवाय डाइवर्जेंट होती है। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब पास आएगी तब रिफ्रैक्टेड रेस ऐसे ही दिखेंगी, नथिंग रॉन्ग। बट यू विल नोटिस दैट ये कुछ ज़्यादा बेंड हुई है। आई विल शो यू। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, री डायग्राम, ये फर्स्ट केस में है। लाइट रेज आर पैरेलल एंड यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है। तो अभी आप अपने अमाउंट ऑफ बेंडिंग के पास ध्यान देना। अमाउंट ऑफ बेंडिंग बहुत कम है और जब हम देखते हैं 1+u, so now you have to concentrate on this diagram. This is the first case and this is the second case. यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल है
और यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है। यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्जेंट है और यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है। तो इस बार आप अपने अमाउंट ऑफ बेंडिंग के यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे बेंडिंग बहुत कम है और यहाँ पे बेंडिंग कुछ ज़्यादा है। ये मान लो 35 डिग्री और यहाँ पे मान लो 10 डिग्री। तो ये जो इतना पावर, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन को, नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी रे डायग्राम। ये फर्स्ट केस वाला डायग्राम है और ये सेकंड केस वाला। यहाँ पे दूर था ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बहुत पास है। तो अभी रिफ्रैक्टेड रेज अगर हम देखेंगे तो ये वाली रेज ऐसी पीछे चली गई, ये वाली ऐसी चली गई और फोकस होकर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। और यहाँ पे ये रेज वैसे ऊपर चली गई, ये भी रेज वैसे ऊपर चली गई और ये यहाँ पे बराबर सेम डिस्टेंस पे फोकस हो गई। नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। यहाँ पे बेंडिंग लो है और यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस में हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सीलियरी मसल्स यहाँ पे बहुत रिलैक्स होती है और सेकंड केस में सीलियरी मसल्स बहुत, उनको ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ती है फॉर द अमाउंट ऑफ बेंडिंग to focus the image on the retina. In the first and second case, we can see that lens यहाँ पे elongate हुई है, curvature thin है और यहाँ पे eyes round हुई है और curvature बहुत ज़्यादा है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, convex है। तो हम लेंस के इस साइज़ को चेंज करने के पावर को कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का यूज़ है। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन लेंस के पावर को और लेंस के साइज़ को अपने नीड के अनुसार चेंज कर सकता है, बट बियॉन्ड लिमिट ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो हमारे आँखों में डैमेज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दैट हमारे रेटिना पे जो भी इमेज फॉर्म होती है वो यूजुअली इन्वर्टेड रहती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप सोचेंगे ये रियल और इन्वर्टेड क्यों होती है यार? तो इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस। तो अभी आप देखेंगे कि ये लाइट एयर मीडियम से, दैट इज़ एटमॉस्फेयर के मीडियम से इनकमिंग लाइट रेज कॉर्निया पर जाएंगी। एयर मीडियम से वो वापस एक्वियस ह्यूमर दैट इज़ द वाटरी मीडियम पर टकराएंगी, उसके बाद लेंस और उसके बाद वापस विट्रियस ह्यूमर दैट इज़ द वाटरी मीडियम, उसके बाद लेंस पे इमेज फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे जो चेंज इन मीडियम हो, बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेज अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगी और यहाँ पे इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। हमारी आई लेंस और कॉर्निया कॉन्वेक्स शेप की बनी है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। सो बिकॉज द इमेज इज फॉर्म इन्वर्टेड एंड रियल, द ब्रेन करेक्ट्स दिस फिनोमेना विच इज़ सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती है हमारे इमेज को विच इज़ द इन्वर्टेड इमेज ब्रेन के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ये ब्रेन इमेज को कंस्ट्रक्ट कर देती है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर अ नॉर्मल आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called the near point of the eye और ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देख रहे हैं तो हम उसे क्लियरली और विदाउट आँखों पे स्ट्रेस की तरह देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा और पास लाएंगे तो हमारे आँखों पर स्ट्रेस पड़ सकता है। And the second concept is the farthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called the far point of the eye, and this is the farthest distance of the distinct vision। और ये जो फार पॉइंट है ये इन्फिनिटी है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर इन्फिनिटी के तक जाएंगे हम लोग तो हमारे आई को विदाउट स्ट्रेस हम देख सकते हैं, हमारे इमेज फॉर्म विदाउट स्ट्रेस हो सकती है। ये दोनों भी कंसेप्ट में पावर ऑफ अकोमोडेशन दैट इज़ द पावर ऑफ लेंस है कि फुल रिलैक्स होती है, इन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। So if you are going to find any of the difficulties in understanding the concept, do let me know. I will surely help you.